करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयतें पढ़ते हैं। बहुत शांति से बैठिएगा, शायद थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर के पास हमारे लिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15 7वीं आयत से आखिरी आयत तक। उत्पत्ति 15 અને તેને કહ્યું કે આ દેશ વતન તરીકે તને આપવા સારું કાસ્દીઓના ઉરમાંથી તને કાઢી લાવનાર હું યહોવા છું. અને તેણે કહ્યું, હે પ્રભુ યહોવા, હું એનો વારસો પામીશ એ હું સાથી જાણું. અને તેણે તેને કહ્યું, 3 વર્ષની વાછરડી તથા 3 વર્ષની બકરી તથા 3 વર્ષનો મેંઢો તથા એક હોલું ને કબૂતરનું એક પિલ્લું મારી સારું લે. અને તેણે એ સર્વ લીધા ને તેને વચમાંથી ચીરીને કકડા સામસામા મૂક્યા, પણ તેણે પક્ષીઓને ચીર્યા નહીં. અને જ્યારે શિકારી પક્ષી તે મુર્દા ઉપર પડ્યા ત્યારે ઇબ્રામે તેઓને ઉડાડી મૂક્યા. અને સૂર્ય આથમતો હતો ત્યારે ઇબ્રામ ભર ઊંઘમાં પડ્યો, અને જુઓ, મોટો ઘોર અંધકાર તેના પર પડ્યો. અને તેણે ઇબ્રામને કહ્યું, તું ખચી જાણ કે તારો વંશ પરદેશમાં ભટકશે ને ત્યાંના લોકોની સેવા કરશે, અને 400 વર્ષ લગી તેઓને દુઃખ દેવામાં આવશે. અને જે લોકોની સેવા તેઓ કરશે તેઓનો ન્યાય પણ હું કરીશ, અને ત્યાર પછી તેઓ ઘણી સંપત્તિ લઈને નીકળશે. પણ તું પોતાના બાપ દાદાઓની પાસે શાંતિએ જશે, અને તું ઘણો ઘરડો થયા પછી દટાશે. અને તેઓ 4થી પેઢીમાં અહીં પાછા આવશે, કેમ કે અમોરીઓના પાપનો ઘડો હજુ ભરાયો નથી. અને એમ થયું કે સૂર્ય આથમતા અંધારું થયું ત્યારે જુઓ, એક ધુમાતી સગડી તથા બળતી મશાલ એ કકડાઓની વચમાં થઈને ગઈ. તે જ દહાડે યહોવાએ ઇબ્રામ સાથે કરાર કર્યો કે મિસરની નદીથી તે ફ્રાત નામની મહાનદી લગી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે, એટલે કેનીઓને તથા કનીઝીઓને તથા કાદમોનીઓને તથા હિત્તીઓનો તથા પરિઝીઓનો તથા રફાઈઓનો તથા અમોરીઓનો તથા કનાનીઓનો તથા ગિર્ગાશીઓનો તથા યબૂસીઓનો દેશ આપ્યો છે. दूसरा भाग पढ़ेंगे उत्पत्ति 17, 9 और 10, 9, 10 और 11. અને દેવે ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે તું તો મારો કરાર પાડ, એટલે તું તથા તારા પછી તારો વંશ પેઢી દર પેઢી પાડો. મારી તથા તારી વચ્ચે ને તારી પછી તારા વંશજો વચ્ચે મારો જે કરાર તમારે પાડવો તે એ જ છે કે તમારામાંનો જે દરેક પુરુષ તેની સુન્નત કરવી જોઈએ, અને તમારે તમારી ચામડીની સુન્નત કરાવી, અને એ મારી તથા તમારી વચ્ચેના કરારની નિશાની થશે. और एक भाग इब्रानी 13 और 20, हिब्रूज 13 वर्स 20, इब्रानी 13 और 20. બસો 25 નંબરનું પેજ, 13-20. હવે શાંતિનો દેવ, જેણે ઘેટાના મોટા રખેવાળ આપણા પ્રભુ ઈસુને સર્વકાળના કરારના રક્તથી મુએલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો. ओके, अनंतकालिक वाचा का लहू, ओके, इसके ऊपर हमको फोकस करना. प्रकाशित वाक्य 7, 13 और 14. प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 7, 13 और 14. પછી તે વડીલોમાંના એકે મને પૂછ્યું કે જેઓએ શ્વેત જબ્બા પહેરેલા છે તેઓ કોણ છે અને ક્યાંથી આવ્યા છે? તેને મેં કહ્યું કે મારા મુરબ્બી તમે જાણો છો. તેણે મને કહ્યું, જુઓ, જેઓ મોટી વિપત્તિમાંથી આવ્યા તેઓ એ છે. તેઓએ પોતાના વસ્ત્ર ધોયા અને હલવાના રક્તમાં ઉજળા કર્યા. आखिरी व्यवस्था विवरण એટલે પુનર્નિયમ ડ્યુટ્રોનોમી 10 और 16.
પેજ નંબર 170. માટે તમે તમારા હૃદયની સુન્નત કરો અને આજથી હઠીલાપણું છોડી દો. आखिरी भाग एक और पढ़ लेते हैं, कलोसी 2 और 11. बहुत सारी आयतें हम कोशिश करते हैं जितना कम में हो सके. કલોસી 2 11. અને જે સુન્નત હાથે કરેલી નથી એવી સુન્નતથી તમે તેનામાં સુન્નતિ થયા, એટલે ખ્રિસ્તની સુન્નતને આશરે તમે દેહને તેની દૈહિક વાસનાઓ સુદ્धा ઉતારી મૂક્યા. आइए दुआ करें. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद आपके जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जो पढ़े गए ये आपके वचन हैं. हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीहा इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बात करें, आज हमसे व्यवहार करें. पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, ताकि वचन की सच्चाई आज हमें मुक्त कर दे. प्रभु यीशु हम खाली हाथ आए हैं लेकिन आप हमको भर कर भेजें. आपकी मर्जी आज आपके हमारे जीवनों में हमारे बीच में पूरी हो जाए और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले. हम किसी इंसान को सुनने नहीं आए, आपको सुनने आए. आप बोलें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ले. प्रभु यीशु मसीहा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आज आपको निहार सकें. हमारे कानों को खोलें ताकि आज हम आपकी आवाज को सुन सकें. आज आप हमसे बात करें, व्यवहार करें और ज्ञान, बुद्धि और समझ और पट्टीकरण की आत्मा हमें दें ताकि प्रभु यीशु क्या बुलाहट आपने हमें दी उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करके आंखों को खोलकर दृष्टिकोण बदलकर हम यहां से आगे बढ़ने पाए ताकि हमारे जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं. आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु. बैठ सकते अपनी जगह. पहली बात तो ये याद रख लें, ये आपको पता होनी चाहिए कि फसह, पासओवर, पास्का वो अप्रैल 22 तारीख को है और उस दिन सोमवार है. ओके. आज किसी भी एंगल से कोई भी तरह से पास्का नहीं है, इसलिए उस तरह से गुड फ्राइडे भी आज नहीं है, लेकिन पब्लिक हॉलीडे है और बाइबल हमको सिखाती है कि यीशु मसीह का आना जैसे करीब हो वैसे जो और हम इकट्ठा होना चालू रखें. आने कोशिश करें. इसलिए आज इस विषय के ऊपर हम संदेश जरूर सुनेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए ये पूरा साल हमारे लिए है. आमीन. प्रभु यीशु को हमसे दिसंबर 25 को याद नहीं करना चाहते कि यीशु मसीह आए. अरे पूरे साल हमको पता होना चाहिए यीशु मसीह हमारे लिए आए. आमीन. क्रूस पर हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी और पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर हैं. कई लोग आज रोना धोना शुरू करेंगे, सफेद कपड़ों में जाएंगे, उपवास करेंगे. हमारा प्रभु, मेरा प्रभु, कल उनके लिए प्रभु यीशु होंगे ही नहीं और रविवार को एकदम से सुबह पोटली मारेंगे अंदर और ट्रक में भर के निकलेंगे. यीशु उठ्यो छे. मतलब तू क्या रे उठीस पण यीशु उठ्यो छे, यीशु उठ्यो छे. अरे पूरा साल 300-2000 साल से ये संदेश लोगों के पास जा रहा है, यीशु उठ्यो छे, प्रभु यीशु जिंदा है. आमीन. आमीन. पटमोस टापू के ऊपर यीशु मसीह जब यूहन्ना को दर्शन देते हैं, यूहन्ना से क्या बात करते हैं? मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं. मैं मुर्दा था लेकिन सदा काल के लिए मैं जीवित हूं. आमीन. आमीन. उस परमेश्वर की हम बात करते हैं. लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हम देखना चाहते हैं, जो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जिस पास्का को प्रभु यीशु ने अपनी जान दी, उस दिन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट विषय. मैं यहां से शुरू करूं कि बाइबल हमें कहती है, या तो मैं पहले यूं कह दूं कि ये दिन या तो ये बनाव जो बन गया, ये ओकेशन जो हो गया, यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी, ये मानव जात के लिए सबसे बड़ी आस देने वाली घटना थी. क्यों? उसको आज हम देखना चाहते हैं और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं विश्वासी लोग आस से भरे होने चाहिए. आमीन.
डाचा लपड़ेला होना नहीं चाहिए। आस से भरे लोग दिख जाता है कि इनके पास अभी भी आशा है। आमीन आमीन। और तो वचन से हम देखना चाहते हैं, देखो बाइबल बताती है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो वाचा करने वाला परमेश्वर है। बार बार लिखा उसने आदम हवा से भी उसने वाचा बांधी थी, नोआ के साथ भी बाइबल बताती है उसने वाचा बांधी, और जब भी वाचा बांधी जाती है उसकी कोई ना कोई निशानी भी होती है। उदाहरण के तौर पर रेनबो, मेघधनुष, नोआ के साथ और उनकी पीढ़ियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो उसकी निशानी भी उसने दी। बाइबल का परमेश्वर ये वाचा करने वाला परमेश्वर है, करार करवा वाला ईश्वर है। आमीन। याद रखना, जब आप करार करते हैं या वाचा बांधते हैं, आप बंध जाते हैं, आपको फिर उसमें से कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यहां तक जाने को तैयार है। बहुत सारे अलग अलग तरह की वाचाएं या तो करार बाइबल में हम देखते हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप रूथ का पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर चप्पल का करार दिया हुआ है। चप्पल का भी करार था, अगर आपका कुछ हक है और आप उसको जाने देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मैं जानता हूं कि उसका हस्बैंड मर गया तो पहला अधिकार मेरा है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपना हक जाने देता हूं, वो दिखाने के लिए अपना चप्पल उतार के वो दे देता था, ताकि नेक्स्ट लाइन में जो भाई हो उसका नंबर लगने पाए। कभी कोई यूं ना बोल सके कि मेरा अधिकार मेरा था, हक मेरा था, जमीन के ऊपर हक पहले मेरा था, उस औरत पे पहले मेरा था और तुमने उसको हड़प कर लिया। वो दिखाने के लिए चप्पल का करार आप रूथ में पढ़ सकते हैं, आखिरी अध्याय में आपको मिलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद के साथ और उसके परिवार के साथ नमक की वाचा बांधी। द कॉवेनेंट ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है। नमक की वाचा क्या है? नमक आप एक बार सब्जी में डाल दो, उसके बाद वापस नहीं निकाल सकते हैं। अगर नमक कम है तो हम उसके ऊपर जरूर ऐड कर सकते हैं कि भाई नमक थोड़ा और दे दो, लेकिन एक बार डाल दिया उसको वापस नहीं निकाल सकते हैं। कई लोग ज्यादा खारा हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू वगैरह डालकर उसकी असर कम करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन नमक एक बार डाल दिया वो वापस नहीं निकाल सकते हैं। आमीन। यानी इस वाचा के द्वारा परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? दाऊद, मैंने तुझे जो बोल दिया सो बोल दिया। अब नमक दो चीजें दिखाती हैं, एक तो नमक डालने के बाद वापस नहीं ले सकते हैं, बोल दिया वापस नहीं ले सकते हैं। दूसरा, वो परमानेंट रहेगा। सॉल्ट इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव। नमक का इस्तेमाल चीजों को संभालने के लिए या उसकी लंबी आयुष्य के लिए भी डाला जाता है। आमीन। तो नमक द सॉल्ट ऑफ कॉवेनेंट, वाचा का करार भी है। परमेश्वर इजरायलियों से भी बोलता है कि जब भी एक उदाहरण दे दो, हम लोग यहां पर कई बार कमजोर मालूम पाए जाते हैं। नमक का करार क्या है? जब एक बार बोल दिया सो बोल दिया, एक बार कह दिया सो कह दिया। आमीन। हम लोग क्या करते हैं, जब चर्च के अंदर बोला जाए कि क्षमा कर दो, छोड़ दो, अरे हाँ प्रभु, सही में वो नमक का करार है कि एक बार निर्णय ले लिया सो ले लिया, लेकिन बाहर जाते जाते अरे लेकिन मैं तो भूल गया, उसने तो ये भी किया था, नहीं मैं तो क्षमा नहीं कर सकता था इसको। अरे नमक आप वापस नहीं निकाल सकते, नमक डाल दिया खत्म हो गई बात। आमीन। नमक का करार एक बार परमेश्वर ने बोल दिया, दाऊद मैंने तेरे साथ तेरे परिवार के साथ किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं, बाइबल कहती है अगर परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आएगा तो दाऊद के घराने में ही आएगा। दाऊद के सिंहासन पर कभी भी जगह खाली नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने नमक की वाचा उसके साथ बांधी। आमीन। यहाँ पर सबसे अलग अलग तरह की, यहाँ तक कि इब्राहिम भी जब अपने एलिएजर को, चेले को भेजता है इसहाक को खोजने के लिए, इसहाक के लिए बहू लाने के लिए, बाइबल कहती है दूसरा भी एक तरीका था कि व्यक्ति वो कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठेगा, उस जमाने में हुआ करते थे या पता नहीं, लेकिन पत्थर पे बैठेगा। दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ वाचा बांधेगा वो उसकी जांघ पर ऐसे हाथ रखेगा और बोलेगा तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। इब्राहिम ने उससे बोला कि तू जा और जाकर मेरे बेटे के लिए यहाँ से कोई तू बीवी उसके लिए नहीं खोजेगा, लेकिन तू मेरे घर जाएगा, वहां से तू लेकर आएगा। ये भी एक तरीका था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताऊं, हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, आज अगर सबसे दुख की अगर मैं बात करूं तो आज इंसान के शब्द की कोई वैल्यू नहीं है।
हम उस जमाने में जो बात करते थे या उस जमाने में जो हम देखते हैं, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। इसलिए यीशु मसीह यहां तक बोलते हैं कि कसम खाने की भी कहां तुमको जरूरत है, तुम्हारी हाँ हाँ होनी चाहिए, तुम्हारी ना ना होनी चाहिए। एक बार बोल दिया तो बात खत्म। लेकिन यहां पर तो हमारे आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, इतने बहाने 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 बहाने, आमतु तैमतु, ऐसा था वैसा था। लेकिन हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जो एक बार बोल दे उसके बाद मुकरता नहीं है। आमीन आमीन। तो हम वाचा के ऊपर जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको तो हम जरूर देखेंगे। बाइबल कहती है इब्राहिम जो अभी तक उसको बच्चा नहीं हुआ था, और बच्चा नहीं हुआ था तो इब्राहिम चाह रहा था कि परमेश्वर में जब 75 साल का था, तूने मुझे वचन दिया था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तूने मुझसे वाचा, तूने मुझे वचन दिया था, इसलिए मैं सब छोड़ के निकल आया। आज उस बात को 10 साल बीत चुके हैं। कब मुझे बच्चा मिलेगा, कब मुझे आशीष मिलेगी? जब ये बात इब्राहिम परमेश्वर से पूछता है, बोलता है कि देखो परमेश्वर, यहां तक आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हंसी भी आती है कई बार कि दिल की बात मुंह पे आ जाती। परमेश्वर बोलता है, इब्राहिम को दर्शन देकर बोलता है, आई एम दाई ग्रेट रिवॉर्ड, मैं तेरा बहुत बड़ा इनाम हूं इब्राहिम। ये थैंक यू भी नहीं बोलता, बोलता अरे बच्चा कब देगा बता ना, एलिएजर ले जाएगा कैसा। अब दिल में जो है वही मुंह पे आ जाता है। तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है, जो आयतें हमने पढ़ी, लिखा है परमेश्वर ने उस दिन इब्राहिम से वाचा बांधी। इब्राहिम प्रश्न करता है कि मुझे तू बच्चा देगा कि नहीं देगा, बच्चा कब देगा। अब ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उसको तंबू के बाहर बुलाया और कहा आसमान को देख, और जब आसमान को देखा, इतने तारे देखे, इतने बच्चे तुझे दूंगा, क्या विश्वास करता है? तो इब्राहिम ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं। यहां पर बात खत्म हो जाती, खत्म हो गई। तुमको प्रश्न था बच्चा होगा कि नहीं होगा, मैंने बोल दिया इतने बच्चे दूंगा, तू विश्वास करता है? करता है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन खत्म नहीं होती है। बाइबल का परमेश्वर एक कदम और आगे जाता है और उस दिन इब्राहिम से वो वाचा बांधता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा 5 जानवर तू मेरे पास लेकर आ, और लिखा है उसमें से 3 जानवरों को तू काटेगा और 2, क्योंकि पक्षी है और उसका बच्चा है, माँ और बेटे को काटना नहीं है, लेकिन उनको मारकर उनका खून। अब देखो वाचा किस तरह से बांधी जाती थी, या उस जमाने में वाचा किस तरह से की जाती थी। 2 पार्टीज इकट्ठा होती थी और 2 पार्टीज के बीच में वाचा बांधी जाती थी। आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ लेना, बार बार आपको ये मिलेगा। उत्पत्ति में तो इतनी सारी बार मिलेगा, याकूब ने लाबान से वाचा बांधी, इब्राहिम ने इससे बांधी, यहाँ तक कि इसहाक और अबीमेलेक राजा के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहां पर भी उन्होंने वाचा बांधी। तो बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। बार बार ये लोग वाचा बांधते थे। वाचा बांधने का मतलब है वाचा, और खास तौर से सबसे ऊंची जो वाचा होती थी वो लहू वाली होती थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू मार जानवरों को और काट कर एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर रख, बीच में से काट कर, और बीच में लहू छिड़का जाता था। लेकिन वाचा किस तरह से बांधी जाती थी उसके बारे में कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर उस जमाने में 9 स्टेप्स का इस्तेमाल होता था। सबसे पहले दोनों पार्टी आमने सामने आकर अपना रोब, अपना जो आउटर कोट है उसको उतार कर एक दूसरे को दे देती। आपको पढ़ना है, आपको ज्यादा जानना है, रेफरेंस में दे दूंगा, आप घर जाके पढ़ लेना। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 1 शमूएल 18वां अध्याय, दाऊद और योनाथन ने किस तरह से वाचा बांधी। जब आप अपना रोब निकाल कर एक दूसरे को देते हैं, आप क्या बोलते हैं? मैं अपना सब कुछ तुम्हें देता हूं। और सामने वाला क्या बोलता है? मैं अपना सब कुछ तुम्हें देता हूं। दूसरी बात जो की जाती थी कि बेल्ट उतार कर दे दिया जाता था। बेल्ट क्यों उतार कर दे दिया जाता था? बेल्ट आज फिटिंग के लिए या पतलून जैसे इन शर्ट हो कुछ अलग हेतु से रखा जाता। उस जमाने में बेल्ट इसलिए रखा जाता था क्योंकि उसके ऊपर हथियार लगे रहते। तो जब आप बेल्ट उतार कर दे रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को? मेरे जितने भी हथियार हैं वो आज से तुम्हारे। सामने वाला क्या बोलता है? मेरे जितने भी हथियार हैं आज से तुम्हारे। तीसरी बात वहां पर की जाती थी, ये भी आपको 18 में मिल जाएगा। तीसरी बात कि वहां पर उसके बाद हथियार देने का क्या मतलब है? मेरी ताकत आज से तुम्हारे लिए,
मेरे सैन्य तुम्हारे लिए, मेरे लोग तुम्हारे लिए लड़ाई करेंगे। सामने से यहां पर से तुम बोलते हो मेरा भी जो कुछ है आज से तुम्हारे लिए। तीसरी बात, फिर जानवरों को काट कर उनको अलग अलग कर दिया जाता था, वहां पर खून बहाया जाता था, जो खून है वो छिड़का जाता था। इसके बाद क्या होता था? इसके बाद दोनों पार्टीज आमने सामने खड़ी रहती थी। दोनों पार्टीज इस तरह से खड़ी रहती थी। ओके, क्या होता है अच्छा जी? दोनों पार्टीज इस तरह से खड़ी रहती थी। इसके बाद यहां पर जानवर का एक टुकड़ा यहां पर है, एक टुकड़ा यहां पर है। और वाचा किस तरह से बांधी जाती थी? हमेशा एक पार्टी इस तरह से घूमेगी, दूसरी पार्टी इस तरह से घूमेगी और फेस टू फेस आएंगे। शुरुआत कहां से की? शुरुआत इस तरह से की जाती थी। इसका क्या मतलब है? ये वाचा में जुड़ने से पहले मैं अपने आप को नकार देता, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता हूं। सामने वाला बोलता मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता हूं। और फिर इस वाचा को बांधे खरीदे। जब वाचा को पूरा किया जाता था, अब फेस टू फेस आते थे। अगर हमारे इंग्लिश में देखें तो पूरा 8 बनाते थे ये लोग, और 8 एक नई शुरुआत का आंकड़ा है। आमीन। यानी दो व्यक्ति जब वाचा में जुड़ते हैं, यहां से एक नई शुरुआत होती है। तो बाइबल में लिखा है जो हमने पढ़ा। ओके, थोड़ी बातें आगे, उसके बाद मैं आता हूं इसके ऊपर। दूसरा, इसके बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे ये खुद अपने हाथों में क्या बोलते हैं, चीरों मारे, हाथ काट देते थे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा खून निकले। और ये वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसकी ये निशानी है। याद रखना, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने दूसरा कुछ नहीं दिखाया। क्या बोला? देखो मेरे हाथ, देखो निशान, देखो। ये किस चीज के निशान थे? लोगों ने मारा उसके नहीं थे, वाचा बांधी है मैंने तुमसे। आमीन। इसके निशान। उतना ही नहीं, अगर इतिहास में जाओगे, एक बहुत, मेरे ख्याल से 18वीं सदी में, नाम मैंने लिख के कहीं रखा है, मैं भूल गया, लेकिन ये आदमी बहुत फेमस हो गया था उस जमाने में, 18वीं सदी में। क्योंकि ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में कोई भी जाता था तो वहां पर, क्योंकि इंसान को खाने वाले उस वक्त ये लोग रहते थे, तो खा जाते थे, मार देते थे। लेकिन उस वक्त एक आदमी बहुत फेमस हो गया था। ये आदमी को कोई मारता ही नहीं था। क्या कारण था? ये करता क्या था? ये मुखिया के पास पहुंचकर, वो कैसे करता होगा क्या पता, उसके लिए तो किताब पढ़नी पड़े, लेकिन वो मुखिया के पास जाकर उससे वाचा बांध लेता था। वाचा की निशानी होना जरूरी है। वाचा की निशानी होती थी तुम्हारे हाथ में कट होना चाहिए। ओके, तो जब कट मारते थे तो वहां पर सामने वाला भी अपने हाथ को काटेगा, आप भी काटोगे, फिर दोनों के खून को मिक्स किया जाता था। ये निशानी कि जो मेरा स्वभाव है आज से तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा है आज से मेरा होगा, एक्सचेंज किया जाता था। आप जब, ये आदमी ने 50 मुखियाओं से वाचा बांधी थी, तो ऐसा लिखा इसके बारे में, ये आराम से अफ्रीका के जंगलों में घूमता था। ये अपने शरीर पर 50 कट दिखा सकता था। कोई भी अगर इसको घेर लेगा तो बोलेगा एक मिनट पहले देख लो, तुम्हारे मुखिया ने मेरे साथ वाचा बांधी है, मेरे पास निशानी। अगर आपके पास निशानी हो कि आप परमेश्वर से वाचा में जुड़े हैं, तो इस दुनिया में आप कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को दिखाया कि देखो, मैंने तुमसे जो वाचा बांधी, उसकी निशानी मैं दिखाता। उसके बाद और एक बात की जाती थी, अब नाम में अदला बदली की जाती थी। जब वाचा की जाए तो ये आदमी अपना नाम में से एक भाग सामने वाले को दे देता था, सामने वाला एक अपने नाम में से एक भाग इसको दे देता था। परमेश्वर ने जो इब्राहिम से वाचा बांधी, उत्पत्ति 17 में, आप घर जाके पढ़ना। परमेश्वर ने, क्योंकि 15वें अध्याय में सब आयत हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 15वें अध्याय में जो वाचा परमेश्वर ने बांधी, वो प्रक्रिया आधी थी।
और वो इब्राहिम की गलती की वजह से रुक गई, क्योंकि लिखा है परमेश्वर इधर वाचा बांधने के लिए आया, और 16वें अध्याय में लिखा है इब्राहिम ने हाजिरा के साथ सोकर, अब वाचा अभी बांधी है, अभी परमेश्वर बोलता है तेरे वंशजों को मैं ले जाऊंगा, तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सारा का सुनकर 13 साल वेस्ट हो गए। इसलिए 13 साल के बाद परमेश्वर वापस 17वें अध्याय में इस वाचा को कंटिन्यू करता है। तो वाचा को कहां से कंटिन्यू करता है? नाम की अदला बदली से। परमेश्वर क्या बोलते हैं इब्राहिम को? मैं मेरा नाम तुम्हें देता हूं, आज से तू अब्राम नहीं इब्राहिम कहलाया जाएगा। इब्राहिम का क्या, अब्राम का मतलब होता है देश माननीय पिता, रिस्पेक्टेड फादर। लेकिन परमेश्वर ने कौन सा नाम दिया? इब्राहिम का मतलब देश जातियों का पिता। देश जातियों का पिता वो परमेश्वर का नाम है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने अपना नाम उसको दिया और इब्राहिम का नाम परमेश्वर ने उठा लिया। उस दिन के बाद परमेश्वर ने अपने आप को कहना शुरू किया, मैं इब्राहिम का परमेश्वर। अगर हम अपने विश्वास की बात करें, हमको क्यों क्रिश्चियन कहा जाता है? यीशु मसीह का नाम है। आमीन। वाचा में अदला बदली होती है। आमीन। तो याद रखना कि हमने उसका नाम लिया है तो उसने भी हमारा नाम लिया है। आमीन। ये वाचा का एक भाग था। ओके, ज्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन वाचा कंप्लीट करने के बाद खाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो, क्योंकि 15वें अध्याय में वाचा की प्रक्रिया अधूरी थी, इसीलिए 17वें अध्याय में लिखा है परमेश्वर इब्राहिम के घर खाना खाने आए। बिना खाना खाए वाचा की प्रक्रिया अधूरी है। आप कितना भी पढ़ ले, याकूब और लाबान के बीच में हुआ, लिखा है वाचा बांधी, फिर खाए पिए और फिर अलग अलग हो गए। कोई आश्चर्य की बात नहीं, यीशु मसीह भी क्रूस पे जाने से पहले खाना खा के जाते हैं। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, ये मेरा शरीर है, लेकिन खाना खा के फिर जाते हैं। आमीन। तो वाचा को इस तरह से बांधा जाता था। और भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता हूं। बात यह है कि इब्राहिम यूं पूछता है तू बच्चा देगा कि नहीं देगा, कब देगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। और वाचा पर याद रखना, परमेश्वर वाचा किस तरह से बांधता है। जैसे अभी मैं और जोवेन दो तरह से यूं घूमे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहला काम क्या किया, इब्राहिम को सुला दिया। लिखता है वाचा इब्राहिम से तुम बांध रहे हो, लेकिन इब्राहिम को तुम सुला दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक बात जानते हो कि इब्राहिम जो वाचा मैं तुझसे बांधने जा रहा हूं, क्योंकि वाचा का मतलब क्या था कि अगर मैंने जो किया वो मैंने जो कहा अगर मैंने नहीं किया तो मेरी हालत इन जानवरों जैसी हो जाए, मैं मारा जाऊं। और ये व्यक्ति इसको बोलता है मैंने जो कहा वो अगर मैंने नहीं किया तो मेरी हालत इन जानवरों के जैसी हो जाए। इसलिए परमेश्वर जानते थे कि ये वाचा कितनी सीरियस है और ये वाचा कितनी बड़ी है। इब्राहिम, तेरी हैसियत नहीं, तेरी औकात नहीं कि तू इस वाचा को मेरी तरह पूरा करने पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को सुला दिया। और लिखा है कि दोनों साइड उसी ने एक जगह लिखा धुमाती सगड़ी जिसमें से धुआं निकल रहा था, दूसरी बाजू लिखा है द बर्निंग टॉर्च, मशाल, वो घूमे। तो दोनों बाजू कौन घूमे? दोनों बाजू परमेश्वर खुद घूमा। आमीन। परमेश्वर ये बोलना चाह रहा था कि इब्राहिम अगर मैं ये ना करूं तो मेरी हालत इन जानवरों के जैसी हो जाए। इस तरह से परमेश्वर ने दोनों पार्टीज का हक संभाल लिया, जगह संभाली, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। और एक बात आपको बताता हूं, देखो उसमें से एक भाग कौन सा था? धुमाती सगड़ी लिखल हुई, यानी उसमें से सिर्फ धुआं निकलता था। परमेश्वर जब सिनाई पर्वत पर उतरने आए, मूसा को कहा तुम्हारे देखते, लोगों के देखते मैं उतरने आऊंगा। तो कौन सी निशानी वहां पर दी? लिखा है वहां पर भी धुआं निकलने लगा, ताकि लोगों को पता चले ये दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, ये वही परमेश्वर जिसने इब्राहिम से वाचा बांधी, वही परमेश्वर यहां पर उतर आया है। आमीन। आमीन। एनीवे, ओके, तो यहां पर इब्राहिम को सुला दिया। इब्राहिम को सुलाने के बाद परमेश्वर दोनों हिस्सों को अपने आप
कंप्लीट करता है। और इब्राहिम से वाचा क्या बांधता है, इब्राहिम को वचन क्या देता है। यहां पर देखो, इब्राहिम ने सिर्फ इतना मांगा कि मुझे बच्चा कब देगा। परमेश्वर इसको क्या बोलता है, परमेश्वर इसको बोलता है सिर्फ बच्चा नहीं दूंगा। परमेश्वर ने इससे वाचा बांधी और परमेश्वर उस दिन बोलता है तेरे वंशजों को 400 साल के बाद, 400 साल के बाद मिस्र से मैं छुड़ा कर ले आऊंगा। और 400 साल के बाद जब उनको मिस्र से मैं छुड़ा के ले आऊंगा, अभी यहीं पर परमेश्वर ने बोल दिया उस दिन बहुत पैसा लेकर वो लोग निकलेंगे। पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था 400 साल पहले ही, धनवान होकर उनको मैं बाहर निकालूंगा और पराक्रमी हाथों से उनको छुड़ाऊंगा। उतना ही नहीं कि एक कदम और आगे, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं इब्राहिम कि इस कनान में, क्योंकि आमोरियों का घड़ा अभी भरा नहीं, इस कनान में मैं उन्हें लेकर आऊंगा। और ये वाचा परमेश्वर ने बांध दी इब्राहिम के साथ। आमीन। अब आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, देखो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि परमेश्वर जिस सिंहासन पर बैठता है उसके बराबर सामने मेघ धनुष दिखता है। यानी परमेश्वर अपनी वाचा को भूलता नहीं है, ये वायदे को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। इब्रानी 6 अध्याय में यहां तक लिखा है, इब्राहिम को जो वचन उसने दिए एक एक वचन उसने पूरा किया है। आमीन। अब आप और मैं यहां से कुछ समझना चाहते हैं। बाइबल यूं कहती है कि देखो परमेश्वर ने वाचा दे दी, तो लिखा है 400 साल के बाद, सही में 400 साल के बाद जब इजरायली लोग गुलामी में थे, इजरायली लोगों को दबाया जा रहा था, उनके पास कोई आस नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी आशा नहीं थी कि हमको छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कर सकते थे किया। लिखा है उन्होंने प्रार्थना की, वे परमेश्वर के आगे रोए। लेकिन वो निर्गमन 2 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने उस दिन अपनी वाचा को याद किया। जो वाचा उसने बांधी थी 400 साल पहले, उस वाचा को याद किया। और ये परमेश्वर इब्राहिम को क्या बोलता है कि देख, मैं अपने लोगों की प्रार्थना सुनी है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं और उनको छुड़ाने के लिए मैं नीचे उतर आया हूं। याद रखें कि आज अगर भूतकाल को हम देखें कि तो कैसे परमेश्वर किस तरह से इनको छुड़ा के ले गया, किस तरह से इनको बाहर ले गया। अरे कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर वो वाचा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वाचा ही उसने क्या बांधी थी इब्राहिम के साथ। याद रख इब्राहिम, अगर मैंने जो कहा उसको मैंने पूरा नहीं किया तो मेरी हालत इन जानवरों के जैसी हो जाए। लेकिन परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल कहती है क्यों उसने मूसा को दर्शन दिया, क्योंकि उसको वाचा याद थी। क्यों मूसा के द्वारा, क्यों 26 लाख से ज्यादा लोग, इतने जानवर को कोई कैसे छुड़ा सकता है। इतना बड़ा दंड आ गया मिस्र के ऊपर, एक व्यक्ति के द्वारा कोई कैसे ला सकता है, ला सकता है, क्योंकि उसने वाचा बांधी थी। अगर मैंने नहीं छुड़ाया, अगर मैं उनको बाहर नहीं लेकर आया तो देख लेना मेरी हालत भी इन जानवरों के जैसी हो जाए। आमीन। इब्राहिम मैंने तुझसे वाचा बांधी है और तू ध्यान में रखना कि ऐसा मैं करके रहूंगा। बाइबल कहती है एक के बाद एक चमत्कार परमेश्वर करते ही गए। लोगों को आश्चर्य होता था। लेकिन मूसा, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, मैंने कहा मैं बहुत आयतें दूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मूसा को विश्वास क्यों था इतना, हम कई बार बात करते हैं कि मूसा ने ऐसी जगह पर विश्वास किया। मूसा को कैसे पता कि लाल समंदर से भी वो रास्ता निकालेगा, मूसा को कैसे पता कि मिस्र से वो छुड़ाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि मूसा को इस बात का एहसास हो गया था, इसने वाचा बांधी है, इब्राहिम से वाचा बांधी है, ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है, ये करके दिखाएगा, कहीं से भी रास्ता निकालेगा। लाल समंदर के आगे आप कैसे विश्वास रख सकते हैं कि यहां से भी रास्ता निकल सकता है? आप कैसे बोल सकते हैं कि मिस्रियों को आज के बाद तुम नहीं देखोगे, ये तुमको नहीं मारेंगे, यहां से परमेश्वर रास्ता निकालकर ले जाएगा? ऐसा विश्वास आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने 400 साल पहले ही बोल दिया, वाचा पहले से ही बांध दी कि मैं सिर्फ मिस्र से छुड़ाऊंगा नहीं, 400 साल बाद सिर्फ छुड़ाऊंगा नहीं, लेकिन इन कनान में यहीं पर इनको लेकर आऊंगा और मैं स्थापित करूंगा। आपको वाचा पर भरोसा हो, परमेश्वर ने जो वाचा दी उसके ऊपर आपको भरोसा हो, तो आपका विश्वास आसमान में रहेगा। आमीन। क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर वाचा, याद रखना, यह वाचा का आधार इस बात पे नहीं था कि इब्राहिम कितना करेगा नहीं करेगा, वाचा का आधार इस बात पे था कि देने वाला कौन है। इसलिए बाइबल बताती है इब्राहिम भी रोमन 4
18, 19 और 20 में लिखा है, इब्राहिम ने भी क्या विश्वास किया। विश्वास क्या था इब्राहिम का कि मुझे इस बुढ़ापे में भी बच्चा मिल सकता है, बुढ़ापे में भी मैं बाप बन सकता हूं, सारा जो जिसका घर मृत है वो वापस जिंदा हो सकता है और वो मां बन सकती है। क्या विश्वास था? बाइबल कहती है उसका विश्वास ये था, जिसने वचन दिया है, जिसने वाचा बांधी है वो करेगा। हालेलुया। इसलिए सिंपल सी बात है, अगर आप बाइबल के परमेश्वर को वाचा देने वाला परमेश्वर उस तरह से अगर देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास ऐसे ही आसमान पे चला ही जाएगा। उसने वाचा बांधी है। वाचा का मतलब ही यह है कि अगर मैं ना करूं ना इब्राहिम, तो याद रखना मेरी हालत भी जानवरों के जैसी हो जाए, तुझसे नहीं होगा। इसलिए मैं करके दिखाऊंगा, मैं 400 साल के बाद तेरे वंशजों को लाऊंगा, यहीं पर लाऊं। अब आप कैसे विश्वास करो कि इस रेगिस्तान में पानी नहीं है, वो पानी भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इसने वाचा दी है, खाली बोलने के लिए नहीं बोल दिया, वाचा दी है, वह करार करेलो से, तो ये जरूर कहीं न कहीं से पानी निकालेगा, लोगों को प्यासा नहीं मरने देगा। इसीलिए मूसा जाकर यूं नहीं बोलता है कि अभी कोई आस है या नहीं। मूसा को आस थी, ये जाकर पूछता है पानी की क्या व्यवस्था है। अच्छा वो पत्थर ठीक है, इसको पता था कि ये परमेश्वर वाचा देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब आखिरी समय था उसका, तभी भी मूसा अपने लोगों से क्या बोलता है, याद रखना यहोशुआ तुम्हारी अगुवाई करेगा, लेकिन जो परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहा वो वाचा देने वाला परमेश्वर है। वो वाचा को देकर, वो करार करके उसको निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का दिन हमको या तो गुड फ्राइडे की अगर हम बात करें, या यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, अगर या तो अपनी जान दी, अगर हम उसकी बात करें, क्यों ये दुनिया में सबसे बड़ी आस देने वाली बात है। अच्छा ठीक है, थोड़ी बातें और कर लूं मैं उस टॉपिक पर आऊं उसके पहले। इजरायली लोगों को कितनी बार ऐसा लगा कि हम खत्म हो जाएंगे, कितनी बार इनको लगा कि हमारे लिए अब तो खत्म। उदाहरण के तौर पर बाइबल कहती है जब ये लोग गुलामी में गए तो इनको लगा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। बाद में जब ये लोग वापस आते हैं 70 साल की गुलामी के बाद, हग्गाई के अंदर हग्गाई उनको याद दिलाता है, दूसरे अध्याय और 5वीं आयत में, याद रखना, अरे तुम कहां से खत्म हो जाते, तुमको क्यों लगता है तुम खत्म हो जाते, क्योंकि हग्गाई बोलता है जिस दिन तुम मिस्र से बाहर निकले उस दिन उसने तुम्हारे साथ कॉल करार किया। ओके, शादी में लोग कॉल करार करते हैं, कॉल करार शब्द यहां से आता है, हग्गाई 2 अध्याय और 5 आया। यानी परमेश्वर ने उस दिन, बाइबल बताती है कि तुमको क्यों ऐसा लगा गुलामी में, तुमको ऐसा लगा कि दूसरे राजा शक्तिशाली हो गए, तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया तो खत्म हो गई बात, तुम्हारा देश लूट लिया तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई आस नहीं है, अब तुम यहीं पर जिंदगी भर जियोगे, तुमको क्यों ऐसा लगा। अरे याद करो फिर से उस परमेश्वर को। ये परमेश्वर वाचा करने वाला परमेश्वर है। जिस दिन तुम मिस्र से बाहर निकले इसने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। आमीन आमीन। वाचा में ये देखना था करने वाला कौन है। अरे कितना महान परमेश्वर है, उसने बोला तो करेगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, उसने बोला तो करेगा। बच्चा उसको 100 साल की उम्र में हुआ। आमीन आमीन। कितनी बार हमारी आदत है, हम अपनी कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं, हमारी जरूरियातों को ज्यादा देखते हैं। मैं ये गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन ये समय हमको याद दिलाता है, वाचा करने वाले के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जिसने वाचा बांधी है वो करने के लिए शक्तिमान है। क्योंकि वाचा यहां तक उसने बांधी है, अगर मैं ना करूं तो याद रखना मेरी हालत भी इन जानवरों जैसी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहती है, इसीलिए बाइबल हमको क्या कहती है, बाइबल हमको कहती है यीशु मसीह ने जिस दिन अपनी जान दी, ये दुनिया के लिए या तो हमारे लिए सबसे बड़ी आस का समय। क्यों सबसे बड़ी आस का समय? क्योंकि यीशु मसीह ने जो लहू अपना बहाया, ये मारा और लहू बहाया उतनी ही बात नहीं है। इब्रानी 13 और 20 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह का जो लहू उस दिन बहा, ये नई वाचा का लहू था। हालेलुया। वाचा का लहू था, यानी परमेश्वर और एक करार करने जा रहा था। परमेश्वर और एक करार यीशु मसीह ने इसलिए जाने से पहले कहा, मेरा ये दाख रस को लिया और क्या कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। नई वाचा का लहू है, यूं कहा। आमीन। आ नवा करार नो लोई छे, यानी ये कोई सामान्य बात नहीं है। परमेश्वर और एक करार करने जा रहा था और एक वाचा में बनने जा रहा था। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि अगर आप देखो
अब पुराने नियम, ओके, अगर जानवरों का लहू जो काट गए, परमेश्वर ने उसके बीच में जो वाचा बांधी, उसमें इतनी सामर्थ थी कि मिस्र इनको खत्म नहीं करने पाया। और एक बात मुझे याद आ रही तो बता देता हूं, यहां तक कि इजरायली लोग, बाइबल कहती है अस्कियल को परमेश्वर पूछता है, अस्कियल देख हालत कैसी है। बाइबल कहती है अस्कियल 47 में कि हड्डियां, एक सर खोपड़ी इधर पड़ी है, हाथ इधर पड़ा है, पैर इधर पड़ा है, और परमेश्वर पूछता है ये मेरे लोगों की हालत है। लोग आस गंवा बैठे हैं, लोगों को लगता नहीं कि अब हम गुलामी से बाहर जा सकते, अब इनको लगता नहीं हमारा देश हमको वापस मिल पाएगा, अब इनको लगता नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ऐसे समय परमेश्वर क्या बोलता है यिर्मयाह में? परमेश्वर बोलता है याद रखना, मैं अपने याकूब के घराने से मैं नई वाचा बांधूंगा, मैं वाचा बांधने वाला परमेश्वर हूं। याद रखना, अगर तुमने ऐसा मान लिया कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो परमेश्वर बोलता है जिस दिन समंदर में लहरें आना बंद हो जाए, याद रखना जिस दिन तुमने पृथ्वी की धरा को ढूंढ निकाला, जिस दिन तुमने पृथ्वी से आसमान का नाप निकाल दिया, उस दिन तुम मान लेना कि मैं तुम्हें भूल गया। बाकी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुमसे वाचा बांधी है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर वो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। तो एजकेल को परमेश्वर बोलता है कि लोगों से कहे कि तुम कहां खत्म हो गए, क्यों ऐसा मानते हो? अरे मैं तो वो परमेश्वर हूं कि अगर तुमको कोई नीचे गाड़ देगा तो उन कब्रों को भी मैं खोलूंगा, वहां पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, वहां से तुम्हें जिंदा करूंगा, वहां से वापस तुम्हें मैं इजराइल में लाऊंगा और साबित करूंगा कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैंने वाचा दी है, वाचा बांधी है। आमीन। ना करो तो मेरी हालत भी जानवरों जैसी हो जाए। तो जानवरों के लहू से की गई वाचा इतनी सामर्थ्य थी, तो बाइबल कहती है आज उसी परमेश्वर ने हमारे साथ अपने लहू से वाचा की। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य, अनंतकालिक लहू। और कि जानवरों का लहू अनंतकालिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक दुनिया रहेगी, कई बार आज भी हम लोग इजरायली लोगों को देखते हैं, लगता है हमास वाले खराब बर्बाद कर देंगे और ईरान वाले हिजबुल्लाह ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे इजरायली लोगों को तुम परेशान जरूर करने पाओगे, उनको जरूर तुम पैरों तले रोने भी पाओगे, क्योंकि वो भी बाइबल बताती है ऐसा समय आने वाला है, लेकिन खत्म नहीं करने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। हालेलुया। ये वाचा बांधी है। लेकिन गुड फ्राइडे का समय या यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी, ये हमको याद दिलाता है कि जिसने अब जानवरों के लहू से वाचा बांधी, उसको आज तक वो निभा रहा। तो बाइबल कहती है जिसने अपने लहू से वाचा बांधी है, अनंतकालिक वाचा का लहू है, अनंतकालिक। आपको और मुझे इस बात को इसीलिए नहीं भूलना है, यीशु मसीह का लहू हम पर होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह का लहू जब हम अपने आप पर लेते हैं, तो यीशु मसीह का लहू ये सिर्फ यीशु मसीह का लहू नहीं है, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी है। आमीन। आमीन। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। इब्राहिम जब सोया हुआ था, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि इब्राहिम इस वाचा का हिस्सा है? क्योंकि सब काम तो परमेश्वर ने किया। इब्राहिम ने क्या किया? जानवर जरूर काटे, लेकिन उसके बाद वो तो सो गया। आमीन। तो परमेश्वर खुद इस वाचा को खड़ी कर कर इब्राहिम को मौका देता है, किस तरह से तुम अंदर आ सकते हो इस वाचा में। पढ़ते फिर से एक बार, हमने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17, 9, 10 और 11। અને દેવે ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે તું તો મારો કરાર પાળ, એટલે તું તથા તારા પછી તારો વંશ પેઢી દર પેઢી પાળો, મારી તથા તારી વચ્ચે ને તારા પછી તારા વંશજો વચ્ચે મારો જે કરાર તમારે પાળવો તે એ જ છે કે તમારામાંનો જે દરેક પુરુષ તેની સુન્નત કરવી જોઈએ, અને તમારે તમારી ચામડીની સુન્નત કરાવીને એ મારી તથા તમારી વચ્ચેના કરારની નિશાની થશે। ओके, अब देखो, अब परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो मुश्किल काम है वो मैंने कर दिया है, जो मुश्किल वचन देना था वो मैंने ले लिया है, वाचा मैंने तुमसे बांध दी है। लेकिन इब्राहिम, बिना खून बहाए तुम इस वाचा में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है
इब्राहिम तुमको सुन्नत करनी पड़ेगी, तुमको शरीर के एक हिस्से से चमड़ी निकालनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा खुद का। आमीन। जब तुम सुन्नत करोगे, तुम और तुम्हारे बच्चे मर्द लोग, तब तुम इस वाचा से जुड़ोगे। आमीन। आमीन। ये पॉइंट क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों को लगता है सब कीमत यीशु मसीह ने दी है, हमको तो कुछ करना जरूरी नहीं है, बस अपना तो अपना बाप नु राज है। नहीं, इब्राहिम को भी कुछ कीमत तो चुकानी थी। आमीन। कहीं भी तुम जाओगे, यहां तक कि यहोशुआ को पता था कि ऐसे ही हम कनान में नहीं जा सकते। एकदम से उसको ध्यान में आया, करे नई पीढ़ी हमारे साथ में है, सुन्नत तो की नहीं, पहले सुन्नत कराओ, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी उसकी निशानी तो चाहिए। आमीन। याद रखना, यीशु मसीह भी अपना लहू बहाते हैं और नई वाचा लाते हैं या नई वाचा से हमको जुड़ते हैं, उसके पहले 8वें दिन उनकी भी सुन्नत की गई। उन्होंने भी शुरुआत इब्राहिम की वाचा से की। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है विश्वासी को भी कुछ देना है, इसका भी खून बहाना चाहिए। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो ऐसा कुछ काट कुट के आपको खून नहीं बहाना है। पहले से परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी इच्छा ये नहीं, या तो मेरी योजना ये नहीं कि तुम शरीर के या तो शरीर के किसी भाग की सुन्नत करो। परमेश्वर पहले से बोलता है अपने हृदय की सुन्नत करो। आमीन। आमीन। अपने हृदय की सुन्नत करो। क्या लिखा हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 10 और 16 में? अपने हृदय की सुन्नत करो, डू नॉट बी स्टिफ नेक, जिद्दी मत बनो, हठीले मत बनो, नम्र हो जाओ। आमीन। बार बार परमेश्वर की कितनी सारी आयतें हैं, यहां तक कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 30 5 और 6 में तो मेरी बहुत फेवरेट आयत है, वो लिखा हुआ है परमेश्वर अगर तुम्हारे हृदय की सुन्नत करेगा, तुम उसको दिल से प्यार करने पाओगे। आज हम उसको प्यार नहीं करने पाते हैं क्योंकि हृदय हमारा ठीक नहीं है। ये कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी। ये वाचा में जुड़ने के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है जो इब्राहिम ने की। इब्राहिम ने एक चीज, और याद रखें, हृदय की सुन्नत आसान नहीं होती है। ये हृदय बाइबल कहती है, यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा, सबसे ज्यादा कपटी हमारा हृदय है। हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, एंजल बहुत कपटी बाबा, बहुत कपटी। लेकिन बाइबल बताती है कोई कपटी नहीं है, हमारा हृदय ही सबसे ज्यादा कपटी है। आमीन। इस हृदय की सुन्नत करना, दिल में क्या चल रहा प्रभु आपकी नजर में ठीक नहीं है, इसको बोलना ये खून बहाने से कम नहीं है। झुक जाना, मेरी ये इच्छा। याद रखना, जब वाचा बांधी जाती है ना, तो वाचा कब बांधी जाती है? जब ये व्यक्ति बोलता है प्रभु आज से सब मेरा तेरा, और ये बोलेगा आज से मेरा सब तेरा। लेकिन हम भूल जाते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर थे ना, तो बाइबल वो उस वक्त सिर्फ वो उस वक्त खून जो बहा रहा था वो नई वाचा, अनंतकालिक वाचा की निशानी थी। लेकिन हो क्या रहा था उस वक्त यही तो वाचा बांधी जा रही थी। देखो, मरना तुझे है लेकिन तेरी मौत मैं ले लेता हूं, मेरा जीवन तू ले ले, तेरा स्वभाव मैं ले लेता हूं, मेरा स्वभाव तू ले ले, मैं तेरे श्राप मैं ले लेता हूं, मेरी आशीष तू ले ले, तेरी कमजोरी मैं ले लेता हूं, मेरी सामर्थ तू ले ले। जब वाचा बांधी जाती है, लेकिन हम लोग गलती कहां करते हैं? प्रभु तेरा सब मेरा, लेकिन मेरा भी मेरा। मैं तो उसको माफ नहीं कर सकता, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ये प्रभु तेरा पैसा मेरा, मेरा पैसा भी मेरा। इब्राहिम, तेरा तुझे कुछ देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा जो चूकता है। आमीन। आमीन। 2 बातें इब्राहिम को करनी थी, वो 2 बातें हमको भी करनी है।
पहले तो हृदय की सुन्नत होनी चाहिए। हृदय आप दे दें खाली प्रभु आज मैं आपका लहू अपने आप पर लेता हूं, परिवार पर लेता हूं और बाहर निकल के फिर भी ठोकर दी। કેમ શેતાન ખાઈ ગયો? તારા હૃદય ના લીધે। पहले हृदय ठीक करना है। आमीन। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वाचा बांधी जाती है तो मुझे जो अच्छा लगता है तेरा तुझे जो अच्छा लगता है वो मेरा, बहुत मुश्किल है। इब्राहिम तुझे कुछ तो देना है। आमीन। दूसरी बात जो इब्राहिम को करनी थी, अब इब्राहिम तूने सुन्नत कर दी, ये भी कुछ ज्यादा कीमत नहीं चुकाई। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने दूसरी बात की, परीक्षा ली, अपने बेटे को बलिदान दे दे। अपने बेटे को एक बाप तभी मार सकता है जब वो खुद मरा हुआ हो। कब कोई बाप, इब्राहिम एक सेकंड भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, नहीं प्रभु इस मैं क्या बोलता हूँ, वो तो जवान है, मैं बोलता हूँ मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, तो मुझे ही तू ले ले, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरा बेटा तुझे क्यों चाहिए, यही तो मेरी आस है, यही तो एक बुढ़ापे का सहारा है। कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जब वाचा बांधी जाती है इब्राहिम को समझ में आता है सब उसने किया, तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। प्रभु मेरा सब तेरा है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये भी तेरा ही है, तू मांगेगा तो मैं दे दूंगा। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, सबसे मुश्किल काम यीशु मसीह ने कर दिया। जब परीक्षा आती है तो तब हम भूल जाते हैं। कई बार हमको लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं दे सकता प्रभु, ये काम करते हैं, पाप कर लेंगे फिर वापस सॉरी बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए लोग वाचा में नहीं चलते। वाचा में चलने के लिए प्रभु जो सबसे मुश्किल था तूने कर दिया, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस परीक्षा में मैं गिरूं नहीं, इसके लिए मना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब तेरा है। क्योंकि परीक्षा में ही आप दिखा सकते हैं कि आप सही में वाचा में जुड़े हैं या नहीं। परीक्षा में आप दिखा सकते हैं सही में आप सामने वाले से प्यार करते हैं या नहीं। आमीन। ओके, तो ये दो बातें हमको भी ध्यान में रखनी है कि यीशु मसीह का लहू वो अनंतकालिक वाचा का लहू है, लेकिन अगर हम मानते हैं या जानते हैं कि हम इस वाचा में जुड़े हैं, तो ये दो बातें हमें भी होनी चाहिए कि हमारा हृदय बार बार उसको बोले। प्रभु हृदय बार बाइबल बोलती है परमेश्वर की आवाज आए, अपने हृदय को पत्थर वाला मत करो, अपने आप को हठीला मत करो। इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ा कि सिर्फ एक चमड़ी निकाल देने से काम नहीं हो जाएगा, तुम हृदय के ऊपर जो चमड़ी है उसको निकालो, हृदय की सुन्नत करो। आमीन। और इसलिए कलोसी में भी, नए नियम में भी, रोमनों की पत्री में लिखा, कलोसी में लिखा कि हमारे हृदय की सुन्नत होनी चाहिए। आमीन। ओके, अगर हृदय की सुन्नत है, हम सही में उद्धार पाए हैं, इसलिए खाली हाथ ऊंचा करने से कोई उद्धार नहीं पाया जाता है, हृदय में काम होना चाहिए। आमीन। और जब हृदय में काम होता है, हृदय की सुन्नत जब होती है, बाइबल कहती है तब प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हम अपने आप पर लेते हैं, तब उसकी नई वाचा, नए नियम की वाचा में हम जुड़ जाते हैं। आमीन। क्योंकि अब जो हमारे ऊपर लहू है, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी अब हम पर है। इसलिए अनंतकालिक वाचा की निशानी क्या याद दिलाती है? कौन सी ऐसी बात थी जो मूसा को याद दिलाती थी कि परमेश्वर मिस्र से छुड़ाएगा? कौन सी ऐसी बात थी जो मूसा को याद दिलाती थी कि रास्ता भी वो निकालेगा, जहां रास्ता नहीं फिर भी निकालेगा, जहां खाना नहीं फिर भी खाना देगा? आप अंदाजा लगाएं। कभी मेरी इच्छा होती है, मैं बोलता हूं लेकिन बाद में याद नहीं आता, मेरी इच्छा होती है कई बार पूछने के लिए कि इतने लोगों के लिए आप चिकन बनाते, कितना किलो चिकन होता होगा? आप सोचो 26 लाख से ज्यादा लोग, यहाँ पर परमेश्वर कितना किलो इनको देता था। मानना, सुबह का ब्रेकफास्ट कितना किलो डेली देता था। आपको कैसे विश्वास? मूसा एक बार भी नहीं बोलता है अरे प्रभु तो कौन से रास्ते ले जा रहा है, इस रास्ते पे तो रेगिस्तान है, इस रास्ते पे खाना नहीं मिलेगा। एक बार भी वो नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता था उसने वाचा दी है, इब्राहिम से वाचा बांधी है, वो रास्ता निकालेगा। आमीन। आज हमको
आपको और मुझे अगर कोई पूछेगा, इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह का लहू हमारे लिए सबसे बड़ी आस है, क्योंकि वो अनंतकालिक वाचा की निशानी है। अगर कोई हमको पूछता है क्यों इतना खुश दिखते हो, दुनिया में सबसे सीधे तो नहीं होगे तुम, हम बोल सकते हैं सबसे सीधा क्या, पौलुस की तरह मैं तो सबसे गया गुजरा, लेकिन मेरे गुनाह उसने माफ किए, मुझे नया जीवन उसने दिया, मेरा जो कुछ मेरे खिलाफ था उसने मिटा दिया। तुमको कैसे पता? अरे नहीं, वाचा का लहू मैं लेकर घूम रहा हूं। आमीन। ये वाचा में लिखा उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू हर गुनाह से इसको साफ करता है। आमीन। तुमको कैसे पता? कि तुमको कैसे पता तुम सही में विजय पाओगे? तुम सही में, तुमको कैसे पता रास्ते की जरूरियात वो पूरी करेगा? अरे मुझे इसलिए पता है कि जहां रेगिस्तान था, जानवरों के साथ जिस परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जानवरों के लहू के द्वारा जो वाचा बांधी थी, अगर वहां पर परमेश्वर पैसादार बना सकता है, अगर वहां पर परमेश्वर खाना पीना दे सकता है, वहां पर कपड़े नहीं फटते और जूते पुराने नहीं होते हैं, तो ये वाचा में क्यों नहीं हो सकता? ये तो अनंतकालिक लहू की वाचा है, यीशु मसीह का लहू है। आमीन। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि सही में आपको वो स्वर्ग में ले जाएगा? अरे बाइबल ऑलरेडी बता देती है। योहन स्वर्ग में जाता तो पूछता है ये सफेद कपड़े वाले कौन है, ये लोग कौन है? तो देखो क्या कहा गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लहू में अपने आप को शुद्ध किया। यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर था, यीशु मसीह का लहू वो अनंतकालिक वाचा की निशानी है, वो आपके ऊपर हो, स्वर्ग में जाने से भी आपको कोई रोक सकता। कई बार मैं तो यूं कह दूं कि इस संसार में कई बार कुछ प्रश्नों की वजह से हम लोग निराश भी हो जाते हैं। हम लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमको लगता है नकामो छे, नकामी छे, कोई काम नहीं, कसू नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर भी जब यीशु मसीह का लहू हम अपने आप पर लेते हैं, चेहरे पर एक चमक आनी चाहिए, एक धमक आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने सोने चांदी से हमको नहीं खरीदा, जब हमको खरीदने की बारी आई, अपने अनंतकालिक वाचा के लहू से उसने हमको खरीदा है। हम कोई फेंक देने की चीज नहीं है, अनंत काल उसके साथ रहने वाली चीज है, इसलिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। आमीन। वाचा बांधी। कौन सी ऐसी बात कि जो विश्वासियों को आज इजराइलियों की तरह, अगर हमको भी कई जगह ऐसा लगता है मेरे लिए कोई आस नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में कुछ बड़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि रास्ता निकलेगा, मुझे नहीं लगता प्रार्थना का जवाब आएगा, तो इजरायली लोग भी जब ऐसे हालात में थे, उनको बार बार याद दिलाया जाता था, याद करो कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे वाचा बांधी है। अरे लेकिन अगर ऐसी बात परमेश्वर जानवरों के लहू के द्वारा बांधी वाचा के कारण अगर बोलता है, तो जो वाचा उसने खुद अपने लहू से बांधी है वो कैसे भूल सकता है? अगर इनको वो बोल सकता है, देखो तुम्हें हाथ पर मैंने बना के रखा है, मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तो जो अनंतकालिक लहू की निशानी हम पर है, बाइबल उससे बहुत ऊपर, ये वाचा इस वाचा से बहुत ऊपर है। हम कैसे मान लें कि वो हमको छोड़ देगा? हम कैसे मान लें? आपको कैसे पता कि गुड फ्राइडे पुनरुत्थान में बदल सकता है? आपको कैसे पता कि आप अगर पुरानी भाषा में वो बोलता है कि कब्र के अंदर से भी मैं खोद के निकालूंगा और जान डाल के वापस लाऊंगा, और 1948 में उसने करके दिखाया। कैसे पता कि इसमें भी वो करेगा? यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा क्यों हुए? बाइबल बताती है यीशु मसीह इसलिए तीसरे दिन जिंदा हुए क्योंकि उनके ऊपर अनंतकालिक वाचा का लहू था। आमीन। आपको और मुझे कैसे पता कि आखिरी दिन हम भी जिंदा होंगे? हमको कैसे पता? कितना ही आसपास प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें आस दे जाता है, इतनी बड़ी आस कि कोई भी हमको बांध के नहीं रख सकता, कोई भी हमको दबा के नहीं रख सकता, कोई भी हमको डरा के नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास आस है। क्यों आस है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लहू से हमसे वाचा बांधी। हालेलुया। उसने वाचा बांधी है, इब्राहिम से उसने वाचा बांधी और उसको पूरा करके दिखाया। आज का दिन हमको याद दिलाता है ये परमेश्वर जिसको आसमान के आसमान समा नहीं सकते, ये हम कई बार बोलते जरूर हैं वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, लेकिन इस बात को हम चूक जाते हैं वो किस लिए आया था। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड,
संपूर्ण हो गया। क्या संपूर्ण हो गया? जो वाचा बांधने के लिए मैंने आया था वो वाचा मैंने खत्म कर दी। हालेलुया। अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई दबा नहीं सकता। बाइबल कहती है अब मसीह लोगों को काट दो, जला दो, अपमानित करो, आप कितना भी कर सकते कर लो, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि अंत पहले से दे दिया। कौन है ये लोग स्वर्ग में? ये वो है जो अनंतकालिक वाचा के लहू में डूबे हुए थे। हालेलुया। अनंतकालिक वाचा का लहू वो हमको स्वर्ग पर ले जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12 और 11 में भी कौन है ये लोग जो स्वर्ग में गए? शैतान को कैसे इन्होंने हराया? शैतान को हरा के कैसे गए? अरे शैतान कुछ नहीं उखाड़ सकता जहां वाचा की बात आती है, क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु ने अपने लहू से बांधी। इसलिए लिखा गया जो स्वर्ग में गए हैं मेमने के लहू के द्वारा गए हैं। हालेलुया। आज का दिन हमको याद दिलाता है परमेश्वर सिर्फ इंसान के रूप में बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं और सिर्फ जान देने के लिए नहीं आया, उसका लहू वो अनंतकालिक वाचा बांधने के लिए आया। आमीन आमीन। और ये परमेश्वर जो इब्राहिम से बोलता है, याद रखना इब्राहिम, अगर मैंने ये न किया तो मेरी हालत भी जानवरों जैसी हो जाए। यही पर आपको पता है आज भी जितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा हो, आप देखना मैंने कितनी सारी गवाहियां देखी। लोग यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे आज भी हमने उनके हाथों में वो कीले देखे, निशान देखे आज भी। क्यों? क्योंकि उसकी वाचा की निशानी है। आमीन। हमें इतना करना है, हृदय इस वाचा में जुड़ने के लिए, याद रखना इस वाचा से तभी हम बाहर निकल जाएंगे। इजरायली लोग जो कनान में नहीं गए इसलिए इनका हृदय ठीक नहीं था। परमेश्वर सामर्थ्य नहीं था ऐसा नहीं था, इनका हृदय ठीक नहीं था। आमीन। हमको ये करना है इस वाचा से जुड़े रहने के लिए, प्रभु मेरे हृदय को तू जांच, मेरे हृदय को तू जांच, ताकि उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं हो। कब्र में रख दिया था यीशु मसीह को, खत्म हो गई बात, मान लिया था, वहां से भी वो बाहर निकल कर आया। क्यों निकल कर आया? लिखा है इब्रानी 13 और 20 में, अनंतकालिक वाचा के लहू के कारण। हमको भी कोई रोक नहीं सकता, हमको भी कोई कब्र में दबा नहीं सकता, हमको भी कोई जंजीरों में बांध के नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू, अनंतकालिक वाचा का लहू ये काफी है, क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने खुद हमसे बांधी है। आमीन आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। फिर से एक बार अपने आप को जांच लें। दो बातें इब्राहिम को करनी थी, दो बातें। पहली बात सुन्नत करनी थी। बाइबल हमको बताती है हृदय की सुन्नत करो। हृदय ठीक है या नहीं? हृदय परमेश्वर के साथ ठीक है या नहीं है तो आज ही ठीक कर लें। प्रभु यीशु को हृदय दे दे, कह दे प्रभु यीशु मेरा हृदय ठीक कर दो, मेरा हृदय ठीक कर दो, मुझे नया हृदय दे दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु यीशु मसीहा, मुझे क्षमा कर दो। दूसरी बात, परीक्षा इब्राहिम की हुई, हमारी भी होती है, क्योंकि इब्राहिम परीक्षा में गिरा नहीं, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। बाइबल हमको कहती है हम भी गिरे नहीं, महिमा का मुकुट हमको मिलेगा। लेकिन हकीकत है हम कई बार गिर चुके हैं, हम कई बार गिर जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू फिर से एक बार अपने आप ऊपर ले, वो हमको शुद्ध करता है, वो हमको साफ करता है, वो हमको फिर से एक बार ऊपर उठाता है। यीशु मसीह का लहू मुर्दों को भी जिंदा करता है, क्योंकि वो अनंतकालिक वाचा का लहू है। यीशु मसीह का लहू फिर से नया बनाता है। यीशु मसीह का लहू, बाइबल कहती है इब्रानी 9, 12, 13, 14 में, हृदय के ऊपर उसको छिड़को, ये हृदय को भी ठीक करता है, हृदय को भी साफ करता है। यीशु मसीह, क्योंकि अनंतकालिक लहू की वाचा की निशानी। हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू अगर हमारे ऊपर है, हमने उसको, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लिया है, तो ये सबसे बड़ी आस की निशानी है, सबसे बड़ी आस, क्योंकि आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और उसकी निशानी हमारे पास है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, अनंतकालिक वाचा के लहू के कारण बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, तो इस तरह से हुए कि पौलुस को लिखना पड़ा, हे मृत्यु तेरी जय कहां, पाप तेरी सामर्थ कहां, क्योंकि उसको तो निगल गया वो अनंतकालिक
लहू की वाचा के कारण वो निगल गया, और इसीलिए उसी वाचा के कारण जो कोई ये निशानी दिखाता वो भी अनंत काल तक जिएगा, वो भी मृत्यु को निगल जाएगा, क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने खुद हमसे बांधी। आइए हर एक व्यक्ति अपने लिए सोचें, हमारे लिए परमेश्वर ने खुद इंसान के रूप में आकर, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने खुद इंसान के रूप में आकर अपना लहू बहाया हमसे वाचा बांधने के लिए। कैसे हमें पता कि हमारी बीमारी जाएगी? वाचा के कारण, लहू के कारण। कैसे हमें पता कि हमारी प्रार्थनाएं जवाब लाएंगी? यीशु मसीह के लहू के कारण। कैसे हमें पता नामुमकिन भी मुमकिन होगा? यीशु मसीह के लहू के कारण। कैसे हमें पता आज तक मैं हारता ही गया, अब जीतने पाऊंगा? यीशु मसीह के लहू के कारण। कैसे मैं विश्वास करूं? इसीलिए क्योंकि इब्राहिम, तुम कौन हो, तुम क्या हो, इसके ऊपर ये वाचा नहीं, परमेश्वर कौन है। देखो किसने तुमसे वाचा बांधी, उसके ऊपर भरोसा करोगे तो 100 साल में भी बाप बनोगे। इब्राहिम ने वही किया। मैं इब्राहिम हूं ऐसा विश्वास नहीं, जिसने वचन दिया, जिसने वाचा बांधी वो कर सकता है, ये विश्वास किया। और आज हमारी नजरों के सामने इजराइल देश है, हमारी नजरों के सामने इजरायली लोग हैं। वही इजराइल इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसने यीशु मसीह के स्वरूप में आकर हमसे वाचा बांधी। गुड फ्राइडे हमको याद दिलाता है, इसलिए गुड है क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने लहू से हमसे वाचा बांधी। इससे बढ़कर और कोई वाचा नहीं। हालेलुया। सभी व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचें, क्या आज मेरा हृदय ठीक है? इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तुझे सुन्नत करनी पड़ेगी, खतना करना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं कि प्रभु यीशु आज आपका लहू फिर से एक बार हम पर उतर आए, आपके लहू की सामर्थ फिर से एक बार उतर आए? हम उस हृदय के सुन्नत के लिए, उस हृदय के खतने के लिए तैयार हैं। हमारा हृदय ठीक कर दे प्रभु यीशु। बहुत सारी सांसारिक बातें हैं, बहुत सारी कड़वाहट इसमें है, बहुत सारी ईर्ष्या है, बहुत सारी बातों को लेकर दुख है, पीड़ा है। आप निकाल दें आज। चुभेगा, दुखेगा, लेकिन चलेगा प्रभु यीशु, क्योंकि जो कीमत आपने चुकाई उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। कितनी बार परीक्षा में गिरे, अब नहीं। क्षमा कर दे प्रभु यीशु, फिर से एक बार उठा ले प्रभु यीशु, क्योंकि इतनी बड़ी आस और कोई नहीं दे सकता। कितनी बड़ी आस मूसा के पास थी, क्योंकि वो जानता था वाचा करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने वाचा बांधी इब्राहिम से, उसको निभाने वाले परमेश्वर हैं। तो हमारे पास तो आज कितनी बड़ी आस होनी चाहिए, क्योंकि वो वाचा तो जानवरों के लहू से बांधी गई थी, लेकिन हमारे साथ आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से,
आपके खुद के लहू से, अनंतकालिक वाचा के लहू से हमसे वाचा बांधी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। कब्र तेरी जीत है कहाँ, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। कब्र तेरी जीत है कहाँ, यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हटाया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आप प्रभु यीशु मसीहा, तू है आशा मेरी। आपके लहू के कारण, आपके लहू के कारण प्रभु यीशुआ, कितनी बड़ी आस आपने हमें दे दी, क्योंकि ये सामान्य लहू नहीं, अनंतकालिक वाचा का लहू, जो हमको स्वर्ग तक ले जाएगा, रास्ते की भी हर जरूरियात पूरी करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस लहू में हम बने रहें, इस वाचा में हम बने रहें। आप तो कभी मुकरने वाले नहीं, हमें जो करना है हम करते रहे प्रभु यीशु, और आपके साथ इस अनंतकालिक वाचा में जुड़े रहेंगे, आस से भरे रहें और बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में देखें। हर रास्ते में, हर गली में जितनी बार दुष्ट आत्माएं, जितनी बार शैतान हम पर हमला करे, उनको कुचल कुचल के आगे बढ़ते चले, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनके बारे में पहले से गवाही दे दी गई। ये कैसे स्वर्ग में गए, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो मेमने के लहू के द्वारा, अनंतकालिक वाचा के लहू के द्वारा स्वर्ग में गए। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद। आपने जो किया, हमारे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन हम कहना चाहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद। इन बातों को भूल न जाएं, लेकिन इनमें वाचा में रहते हुए हम आगे बढ़ने पाए, ऐसा हम सभी के साथ में होने दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ગુણોને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ગુણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન।
હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહા કે જેમણે આપણી સાથે પોતાના લોહી દ્વારા અનંત ખાડી લોહી કરારના લોહી દ્વારા આપણી સાથે કરાર કર્યો અને આપણને તેમની સાથે જોડ્યા, એ પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે. આમેન. ધન્યવાદ.